लोकसभा में नहीं पास हो पाया खवातीन रिजर्वेशन बिल। हिमायत में 278 वोट, मुखालिफत में 211 वोट। तो बड़ी खबर से आपको आगाह करें नाजरीन, आपको बता दें लोकसभा में नहीं पास हो पाया खवातीन रिजर्वेशन बिल। हिमायत में 278 वोट, मुखालिफत में 211 वोट। लोकसभा में नहीं पास हो पाया खवातीन रिजर्वेशन बिल। हिमायत में 298 वोट, मुखालिफत में 230 वोट। तो बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताते लोकसभा में नहीं पास हो पाया है खवातीन रिजर्वेशन बिल। हिमायत में 298 वोट और मुखालिफत में 230 वोट। राहुल गांधी ने खवातीन रिजर्वेशन बिल को लेकर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि ये बिल खवातीन के हुकूक से जुड़ा नहीं है। उन्होंने अपने बचपन की यादें शेयर की और बताया कि कैसे वो अंधेरे से डरते थे, लेकिन उनकी दादी ने उन्हें साहस और एतमाद सिखाया। उन्होंने कहा कि इस बिल का खवातीन से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने पुराना बिल लाने पर उसकी हिमायत करने का वादा किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह के बिल मुल्क का इंतखाबी नक्शा बदलने की कोशिश है और वो ओबीसी और दलित कम्युनिटी से उनकी ताकत छीनने की दौड़ में है। उन्होंने बताया कि जाति जंगना को नजरअंदाज किया जा रहा है और इससे हुक्मरान पार्टियों को सत्ता में बने रहने में फायदा मिल रहा है। उन्होंने इसे मुल्क के खिलाफ और ओबीसी दलित कम्युनिटी के हुकूक के खिलाफ करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ओबीसी और दलित कम्युनिटी के लिए देश में जगह यकीनी बनानी होगी और किसी भी तरह से उनके हुकूक और दस्तूर की रूह पर हमला नहीं होने दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में कुछ रहने के लिए कुछ पार्टियां भेदभाव और डर का सहारा ले रही है, लेकिन वो इसे रोकने के लिए खड़े हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि वो आर्टिस्ट हैं और तस्वीर बनाते हैं, इसलिए उनकी बात को ध्यान से सुनने की अपील की। And there are some truths that need to be told here today in this house. The first truth is that this is not a women's bill. This has nothing to do with the empowerment of women. This is an attempt to change the electoral map of India. Actually, it is a shameful act. Because instead of giving them women's reservation, which is very easy to do, and every single opposition person will support it right now, bring that old bill back right now, and we will help you pass it for implementation from this second. Everybody knows how Indian society treated OBCs, treated Dalits, what was done to them, what was done to their women, what they were allowed to do, what they were not allowed to do. OBCs Hindus. You call Dalits Hindus, but you do not give them any space in the power structure of this country. Now, what is being attempted here is a bypass of the caste census. What they are trying to do is they are trying to avoid giving power, giving representation to my OBC brothers and sisters and to take away power from them. This is the agenda over here. Amit Shah ji says that the caste census has begun. And he repeated twice yesterday, trying to be clever, saying that houses don't have castes. The point is not whether houses have castes or don't have castes. The point is whether the caste census is going to be used for representation in Parliament, Vidhan Sabha, Lok Sabha. What you're doing, because you're scared of what is happening in the politics of this country, you're scared of the erosion of your strength, you're trying to rejig
the Indian political map. You have done it in Assam, you've done it in Jammu and Kashmir, and now you're imagining that you can do it in India. You are telling the South Indian states, you are telling the northeastern states, you are telling small states in India that in order for the BJP to remain in power, we are going to take away representation from you. This is nothing short of an anti-national act. So I am telling you very clearly right now that the entire opposition is going to defeat this attempt of yours to attack the nation state and deprive OBCs and Dalits of their rightful place in society. Across the country, southern states, smaller states, northeastern states, they do not worry. We are not going to allow them. We are not going to allow them to attack the Union of India. You are equal participants in the Union of India. They will not dare to touch your representation in the Union of India. पुंछ के मंगनार इलाके से एक नामालूम शख्स को संगीन हालत में पाया गया, जिससे मकामी लोगों में तशवीश का माहौल पैदा हो गया। अफसरान ने फौरन कार्रवाई करते हुए उसे पास के मेडिकल सेंटर में इलाज के लिए भेज दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शफीक ने तस्दीक की कि शख्स को संगीन हालत में अस्पताल लाया गया था और उसे जरूरी इलाज दिया गया। इब्तदाई इलाज और पहचान की कोशिशों के बाद उसे उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो शख्स ऐसी हालत में क्यों और कैसे मिला। अफसरान ने बताया कि जांच आगे बढ़ने पर मजीद मालूमात सामने आएगी। डोडा जिले में नेशनल हाईवे 244 पर गरसू के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें एक आर्मी जवान लापता हो गया। हादसे के फौरन बाद पास की चनाब नदी में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, मकामी एनजीओज और पुलिस की टीम शामिल थी, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद जवान का कोई सुराग नहीं मिल सका है। अफसरान ने बताया कि जहां बचाव टीम्स नदी पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, वहीं पुलिस दीगर पहलुओं की भी जांच कर रही है, क्योंकि जिस सड़क पर हादसा हुआ वो काफी चौड़ी और साफ है, जिससे हादसे की वजह को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम मौके पर पहुंची और लापता जवान के खानदान से बातचीत की, जिसमें खानदान ने शदीद तशवीश का इजहार किया और अफसरान से तलाशी ऑपरेशन को तेज करने की अपील की। आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम गुत्तो। हमारी मौजूदगी इस वक्त बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 पे हम मौजूद हैं, यानी कि किश्तवाड़ रोड पे मौजूद हूं और शुरुआती जो इलाका आता है गरसू इलाका, वहां पे हम मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कल देर रात यहाँ पे एक स्कूटी का हादसा पेश आया है। बताया जाता है कि जिला डोडा से ठाठरी की तरफ एक शख्स अनिल कुमार, इसका नाम बताया जा रहा है, और जिस तरह से जानकारी हमें मिली कि ये आर्मी का जवान है और अपने घर की तरफ लौट रहा था, मगर इस जगह पे ये शख्स जब पहुंचता है तो यहाँ पे हादसा पेश आता है। हालांकि जो शख्स अनिल कुमार है उसका कोई भी अता पता नहीं है, वो कहाँ है, और दरिया भी काफी ज्यादा दूर है। देख सकते हैं आपकी कितना ज्यादा दरिया भी दूर है। अभी तक जो है वो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे किया जा रहा है और इससे पहले यहाँ पे आर्मी के जवान भी मौजूद थे जो पूरे इलाके को खंगाल रहे थे आखिर वो शख्स अनिल कुमार है वो कहाँ पे है, और अनिल कुमार की फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है। और ये देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे किस तरह से पहुंची हुई है। पहले एसडीआरएफ से बातचीत करेंगे। थोड़ा सा बताएं, ये तो लगता है रास्ते से थोड़ा ही नीचे ये स्कूटी गई है, स्कूटी तो अभी पुलिस ने ले ली है। मरी बताए कि कब आपको इन्फॉर्मेशन मिली और एक्सीडेंट के हवाले से क्या आपको पता है? मैं सर, मेरा नाम विजय कुमार है, मैं एसडीआरएफ टीम लेकर यहाँ पे आया हूँ। हम रात को भी पीसीआर से 7:30 बजे कॉल आई और जैसे कॉल आई तो हम वहां से निकले और यहाँ पे स्पॉट पे आ गए। तो रात को भी हमने सर्च किया, यहाँ से लेकर नीचे दरिया तक सर्च किया और आज सुबह फिर दोबारा टीम लेकर यहाँ पे आए, सर्च कर रहे तो कोई मतलब उसका
मतलब निशान भी कोई मतलब जैसे यहाँ खून का पे कोई अभी धब्बा। तो जानकारी जो हमें मिली कि मोबाइल उस शख्स का मिला है और स्कूटी मिली है। हाँ, मोबाइल और स्कूटी, और स्कूटी भी इस कंडीशन में थी कि सिर्फ एक जो ऊपर मीटर का जो वो है क्या बोलते हैं शीशा, वो टूटा हुआ है, बाकी कुछ भी यानी कि स्कूटी कोई को, नुकसान स्कूटी का भी नहीं है। स्कूटी का भी कुछ तो कोई किस नुकसान एंगल नहीं। से इसको देखा जा रहा है? हर एंगल चेक किया जा रहा है? हाँ, हर एंगल से मतलब चेक कर रहे हैं। अभी कुछ लोग हमारे उधर पीछे गए हुए हैं सीसी फुटेज चेक करने के लिए। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने, दरिया काफी ज्यादा दूर है और ये देख सकते हैं आपकी इनका मानना है कि दरिया में ये शख्स जा नहीं सकता है। आखिर ये शख्स गया तो गया कहाँ? फैमिली भी काफी ज्यादा पैनिक हो चुकी है। मैं इनके जो लवाकिन है इनसे बातचीत करना चाहूंगा। आपका क्या लगता था ये? कब आपको इंफॉर्मेशन मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है? हाँ, कल शाम को हादसा हुआ, मतलब यहाँ पर ना घरसू के मकाम पे, तो सिक्योरिटी ऑन स्पॉट वही मिली जहाँ मतलब रखी हुई थी। बाकी उससे आगे हमें कोई घर की परेशानी वगैरह तो नहीं थी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ऐसा ये कैसा शख्स है? मिलना जुलने वाला सबसे अच्छे से? बिल्कुल सबसे मिलता जुलता है। तो ये कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा था? आया था घर से, ठहरी में आया था, कुछ काम था अपना, तो वहाँ कुछ अपना घर का काम कर रहे थे, तो घर से फिर वापस टाटरी में आए। उसके बाद फिर हमें कोई पता नहीं कहाँ गया वो। फिर बाद में हमें मैसेज मिला कि वो घरसू के मकाम पे उसका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस के जवान अप्रिशिएट इनको करना होगा। सुबह से हम देख रहे हैं कि जमीनी सतह पे देखा जा रहा है और पूरे इलाके को भी इन्होंने खंगाला, चाहे वो नीचे वाला इलाका हो जहां पे हादसा हुआ है और ऊपरी इलाके को भी चेक किया जा रहा है और सारे एंगल्स चेक किए जा रहे हैं कि ये हादसा कैसे पेश आया। और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, गड़सू मकाम पे ही एक बदरवा की जो गाड़ी थी, वो है जो एक ऐसा हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ी खुद दरिया चनाब में डाली थी। उसके बाद कुछ दिन के बाद पुलिस ने उस मैटर को देखा था और वो तीनों लोग जो है वो सही सलामत मिले थे। और बड़े पैमाने पे जिस तरह से पुलिस इस वक्त भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस केस को भी खंगाल रही है, आखिर ये हादसा यहाँ पे कैसे पेश आया। फिलहाल पुलिस ने जो स्कूटी यहाँ पे पड़ी हुई थी जिसका हादसा यहाँ पे पेश आया था, और थोड़ी ही ये गाड़ी स्कूटी जो है वो नीचे गई थी, पुलिस ने इस वक्त इस स्कूटी को यहाँ से लेके अपनी जो है वो पुलिस स्टेशन डोडा में पहुंचाया है। और देखना होगा कि पुलिस इस मैटर को किस तरह से देखती है और इस मसले को कब तक हल करती है। जी मीडिया के लिए वसीम गोत्तू, डोडा। सांबा जिले के विजयपुर में बीजेपी ने एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम की सदारत विजयपुर मंडल से बीजेपी युवा अध्यक्ष जानू रंडावा ने की। मेहमान खुसूसी के तौर पर बीजेपी लीडर जय राम शर्मा, मनोहर लाल शर्मा और राकेश सिंह सलाथिया मौजूद रहे। हाल ही में बीजेपी युवा मोर्चा की नई टीम की तश्कील की गई है। इसमें जानू रंडावा को विजयपुर मंडल का सदर बनाया गया है। वहीं राहुल शर्मा को सेक्रेटरी और जतिन सलाथिया को सांबा जिला युवा मोर्चा नैब सदर के तौर पर अपॉइंट किया गया। ये प्रोग्राम नई टीम को एजाज देने के लिए मुनक्किद किया गया था। बीजेपी के सीनियर लीडर जय राम शर्मा ने नई टीम को हार पहनाकर बधाई दी और उम्मीद जताई कि टीम पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी सतह पर काम करेगी। मैं अपने धीरज जी, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, मैं इनको आज बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शॉर्ट टाइम में इन्होंने ये कार्यक्रम रखा और काफ़ी संख्या में युवा साथी इनके साथ थे, क्योंकि किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं का साथ बहुत ज़रूरी होता है। और जानू जी वैसे ही पहले भी बहुत सोशल थे और अच्छा कार्य करते थे पार्टी के लिए, और आज इनको जो पार्टी ने नई जिम्मेवारी दी है, मैं इस मौके पर इन्होंने आज मुझे भी बुलाया, मैं अपनी दिल की गहराइयों से जानू जी और इनकी सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। बड़गाम से दिल्ली तक चलने वाली पार्सल ट्रेन को डेली बुनियाद पर दोबारा शुरू किया गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने ट्रायल के तौर पर इस सर्विस को फिर से शुरू करने का फैसला किया। फल, मेवाजात और दूसरी चीजें लेकर आज दोपहर बाद बड़गाम रेलवे स्टेशन से पार्सल ट्रेन दिल्ली के आदर्श नगर के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन को JPPRCS का नाम दिया गया है। शुमाली रेलवे की जानिब से जारी स्केड्यूल के मुताबिक 00462 डाउन बड़गाम से सुबह 6:15 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5 बजे आदर्श नगर स्टेशन पहुंचेगी। दिल्ली से 00461
यूपी पार्सल ट्रेन सुबह 5 बजे चलकर अगले दिन 11:45 पर बड़गाम पहुंचेगी। सामान उतारने और चढ़ाने के लिए इस ट्रेन का स्टॉपेज सिर्फ बरी ब्रह्माना और अंबाला कंत में होगा। बता दें कि पार्सल ट्रेन सर्विस 1 साल पहले शुरू हुई थी। कई हफ्तों तक ये ट्रेन रोजाना चलती रही, लेकिन डिमांड कम होने के सबब इसे हफ्ते में 3 दिन कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक अगर ट्रायल कामयाब रहा और इसकी डिमांड बरकरार रही तो पार्सल ट्रेन सर्विस को पहले की तरह मुस्तकिल तौर पर जारी रखा जाएगा। नॉर्दर्न रेलवे के इस फैसले से फल और दीगर कारोबारियों को काफी फायदा होगा। नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से अगरचे बड़गाम और दिल्ली के बीच में पहले ही पार्सल ट्रेन सर्विसेज को शुरू किया गया था, लेकिन डिमांड कम होने की वजह से हफ्ते तक चलने वाली ट्रेन को 3 दिनों के लिए रखा गया था। लेकिन आज फिर एक बार नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से एक फैसला लिया गया, यानी कि आज 17 अप्रैल से 31 मई तक ट्रायल बेसिस पे ये ट्रेन रोजाना रवाना होगी, जो बड़गाम रेलवे स्टेशन से आदर्श नगर दिल्ली तक रवाना होगी। और ये इकदाम इसलिए उठाए गए हैं ताकि कश्मीर के ताजरों को, खासतौर पर फ्रूट ग्रोवर्स को नफा हो और वो इस ट्रेन सर्विस का भरपूर इस्तेमाल करें और उनका जो प्रोड्यूस है वो डेस्टिनेशन तक वक्त पर पहुंचे। तो इस सिलसिले में नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से ये इकदाम उठाए गए हैं। हालांकि आपको बताते चले, पार्सल ट्रेन सर्विसेज को काफी पहले यहाँ पर शुरू किया गया था और पहले ही दिनों जबकि रोड बंद होने की वजह से ट्रेन सर्विसेज में काफी डिमांड रही, लेकिन उसके बाद देखा गया कि डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से ट्रेन सर्विसेज को हफ्ते में 3 दिन निकाला जा रहा था। और अब फिर से फैसला लिया गया है कि ये ट्रेन सर्विसेज कंटिन्यू रहेगी और खासतौर पर 17 अप्रैल से 31 मई तक ट्रायल बेसिस पर नॉर्दर्न रेलवे को फिर से ये अनाउंस किया है कि पार्सल ट्रेन सर्विसेज बड़गाम स्टेशन से आदर्श नगर दिल्ली तक जाएगी। और इससे ये कहा जाता है कि फ्रूट ग्रोवर्स और जो ट्रेडर्स यहाँ के हैंडीक्राफ्ट के साथ जो वाबस्तगी रखते हैं उनको काफी फायदा होगा और यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। जिला बड़गाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। तारीखी जामा मस्जिद में नमाजियों को खिताब करते हुए मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि कल से जब हाजी बैतुल्लाह के लिए अपना मुबारक सफर शुरू करेंगे तो हमारी दुआएं उनके साथ है ताकि उनका सफर आसान रहे और उनका हज कबूल हो। इस साल उनका ये सफर ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया, खासकर मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल बना हुआ है। पूरे मिडिल ईस्ट, खासतौर पर ईरान, लेबनान और पैलेस्टाइन में हम भारी तकलीफें और खून खराबा देख रहे हैं। बेगुनाह जानें लगातार जा रही है। लोग अपनी जान के डर से हर पल खौफ में जी रहे हैं और लोगों को अपने घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पुंछ हेल्थ डिपार्टमेंट ने आज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया है। इस मौके पर बेदारी बढ़ाने के लिए कैंप का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद लोगों को हेमोफीलिया और खून बहने जैसी दीगर बीमारियों के बारे में मालूमात देना था। कैंप राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में मुनक्किद किया गया। यहाँ डॉक्टर्स और हेल्थ मुलाजमीन ने लोगों को इन बीमारियों के सिम्टम्स, बचाव के तरीके और उनके सही इलाज के बारे में समझाया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शफीक चौहान ने बताया कि ये पहल आम आवाम में बेदारी फैलाने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि बीमारी की इब्तदाई पहचान और सही इलाज बहुत ज़रूरी है। वहीं इस कैंप में मरीजों के साथ आए लोगों और मकामी अफराद ने भी हिस्सा लिया। जो है एक ब्लड के बारे में जो अवेयरनेस कैंप हमने लगाया, तो आज 17 अप्रैल को हमारा जो है नेशनल जो है हीमोफीलिया डे है। ये दिन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस दिन जो है हम हर साल जो है जो हीमोफीलिया के ब्लड डिसऑर्डर के बारे में जो है लोगों में जानकारी देते हैं, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं कि एक ऐसा जो ब्लड डिसऑर्डर जिसके ज़रिए जो है खून कम होना शुरू हो जाए या ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, तो हम ये जानकारी देते हैं अपने सुनने वालों को, अपनी जो है आवाम को, पब्लिक को हम जो है जानकारी देते हैं कि ऐसे मरीज जिनके अंदर को ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, खून की कमी हो जाती है, तो ज़रूर अपनी जानकारी जो है आपने जो है जांच करवाएं अपने खून की और उसका इलाज करवाएं। तो ये दिन आज हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर भी हमने जो है ऑर्गेनाइज किया, सेलिब्रेट किया।
खबरों में आज इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।